asked the guy कि हमारी 10वीं क्यों है and लड़कों की 11वीं and the entire like जो पूरा वो था they were hooting and stuff, लेकिन I was genuinely curious कि यार ये क्यों है, this is wrong, simple सी बात है. आगे से उसने कहा कि like we care for our daughters, the parents वो trust us and care for their daughters, to which I replied does that mean they don't care for their sons? तो फिर Assalamualaikum everyone, you're watching Campus और मेरा नाम है लाइबा बासित. और जैसा कि आपको पता है कि हम इस शो में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और किसी के साथ बातचीत करते हैं. तो आज मेरे साथ हैं सनिया जो कि डबल ई कर रही हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नस्ट से, और उन्होंने इसी साल एडमिशन लिया है. और आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका ये एडवेंचर कैसा रहा, और साथ साथ डबल ई के वो कर रही हैं भाई पोइट्री भी, इंग्लिश पोइट्री. तो हम उनसे सुनते हैं थोड़ी सी उनकी कोई पोएम्स वगैरह भी और उनकी कुछ प्रोज भी. अस्सलाम वालेकुम सनिया, वेलकम टू द शो. Welcome, Sam. Thank you so much for having me. So thank you so much for coming to our show. So सनिया, मैंने तो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है. आप थोड़ा सा इंट्रो दीजिए और हमें कोई अपने इंग्लिश पोएम वगैरह कोई इंग्लिश सुनाएं. हाँ जरूर. अस्सलाम वालेकुम. My name is Sania Khani. I'm doing electrical from SEEKS NAST. मेरा पहला सेमेस्टर है and I belong from Multan. I did my OR levels in Multan as well. I like poetry. I like English poetry. Even like इसके अंदर competition हुआ था. I participated in that. Alhamdulillah, I also won that. So that was a surprise for me as well. लेकिन yeah, that's a little gist of who I am. Okay. Should I say like a poetry or something? Yeah, you do share with us. Okay. Chalo, I'll do one of my favorite poems I wrote. I'll try to be as clear as possible. I call this ecstasy. A joy mixed with confused happiness, mere imagination. Oh, but what a feeling of unidentified adoration. It's a pit of happiness with a bed of thorns, a sky without clouds, a satyr without horns. Oh, yes, indeed, it's that young. Oh, But that's no nice. wisdom, merry fantasies with tales of happiness sung. Feel the butterflies and see the stars at night. Eyes closed, but for them you'll fight. Sorrows are remote and bewilderness too high. Where once flew tears is what I see. Is this the bliss you've been trying to capture? But of course, a query is followed by this rapture. Though a spell of euphoria has been cast, answer this, my darling. For how long will this shot of ecstasy now last? That's it. Oh, that's really great. I like it. Clapping. Virtual. Thank you. Thank Yeah. you. So that was a really nice poem, Sania, and I really loved it. So I want to know the reason यार, मतलब आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पोइट्री कर लेती हो, like यार आप थोड़ा सा मतलब if you start like एक social media platform if you use it, like थोड़ा सा उससे अपनी blogging start करे कुछ, तो you can do really well. तो फिर डबल ई में आने का क्या reason है? One, I do have an Instagram account for I do like art and stuff. So, if you want to follow me, cheap publication, but like do follow me on Instagram at sktistic. दूसरा, I दूसरा, double electrical engineering. हाँ, I'd like one. It was my parents' choice. Simple सी बात है. Simply put, it was my parents' choice. Like a lot of people in double E, like half my class in double E is here because उनके parents ने कहा हाँ तुमने double E करनी है. And half of their parents themselves are electrical engineers. So that's one for me too. My dad's an electrical engineer, so I had to do electrical engineering apparently. Okay, you mentioned कि आपने जो डबल ई है वो अपने पेरेंट्स के चॉइस पर की है, तो अब आप इससे कितना सेटिस्फाइड हैं और आप हाउ मच लाइक आप लाइक यार आई वांट टू गो अहेड विद दिस करियर नाउ? यार नहीं, टू बी ऑनेस्ट शुरू में मुझे था कि मैंने नहीं करनी ये वो. आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एंड स्टफ, लेकिन फिर इवेंचुअली अब आके आई डोंट नो व्हाई आई हैव ग्रोन ऑन टू इट, और मुझे मजा आ रहा है करते हुए. लाइक अब मैं एंजॉय भी कर रही हूँ सारा कुछ, तो आई एम ओके विद इट.
तो like अब at least I'm fine with what I'm doing. I've accepted it. और like to be honest हमारे हमारा कोर्स है LCA लीनियर सर्किट एनालिसिस. उसके जो सर है उन्होंने पहले दिन हमें एक बहुत प्यारी बात की थी जिससे to be honest I did think this a lot. उन्होंने हमें पहले दिन उन्होंने तो bluntly कह दिया था he's like a really old guy. तो उन्होंने हमें कह दिया था कि बेटा मुझे पता है आप बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ बैठे हैं जो अपने पेरेंट्स के विल से यहाँ हैं और अपनी विल से नहीं है. तो अब what you can do now is accept it and give it your best instead कि आप उसके ऊपर रोते रहें और फिर जहां पे आप बैठे हैं वो भी सही ना हो सके. So to be honest वो मुझे क्लिक किया और I was like हाँ यार ये बात ठीक है. So let's accept it and do it instead कि आप रोते रहो कि यार मामा ने डाल दिया मुझे यहाँ मैंने नहीं करना इसे. Okay, so yeah, that's really nice कि now you're satisfied and you're like कि यार I'm gonna go ahead with it because बहुत सारे लोग जो हैं अपने आधे कैरियर में ही रो रहे होते हैं कि यार मैंने तो ये करना ही नहीं था and they just like destroyed their whole life. तो हाँ ये फिर that's really good of you. So अच्छा दूसरा ये मैं पूछना चाहूंगी कि आपने ये mention कि you're from A levels right और आपने A levels किया है और O levels किया है फिर so did you like आपने NET दी नर्स के लिए? हाँ, I gave my NET and yes, A levels के बाद NET देना is बहुत मुश्किल. I'm not gonna lie because आपको एक पूरा FSC का सिलेबस करना पड़ता है and despite popular belief नहीं NET is not concept based. Literally maths में books की लाइन आई होती हैं, ठीक है. तो it's like सिर्फ इतना सा conceptual क्योंकि मैं 2 दफा मैंने दिया था. First time round it wasn't very good और second time round अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन when you have to do an entire new syllabus you have to maths तो आप समझो कि mathematics तो है ही नहीं. like maths में आपने गिन के कोई 2 चैप्टर्स किए होंगे, 2 चैप्टर्स भी आधे आपने A levels में किए होंगे, सही है. तो you have to do entirely new concepts, you have to do entirely new things and जो चीजें पेपर में actually आती हैं NET के and it's very hard. chemistry तो ना पूछे. केमिस्ट्री ने बहुत बहुत तंग किया था बहुत ज्यादा. इवेंचुअली केमिस्ट्री मैंने छेड़ी भी नहीं थी और अल्लाह की तरफ से हुआ जो हुआ. फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स टू बी ऑनेस्ट अगर आपके ए लेवल्स के अच्छे स्ट्रॉन्ग किस्म के बने हुए हैं तो यू कैन डू गुड. वो मैं एटलीस्ट बिलीव करती हूँ. मेरा इसलिए हो गया था वो अच्छा. और इंग्लिश और इंटेलिजेंस वाले पोर्शन का हमें यूजुअली नहीं आता. लाइक मेरे दोनों दफा इंग्लिश में 20 में से एक दफा 19 आए, एक दफा 20 आए. तो इंग्लिश का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. तो आई थिंक और टू बी ऑनेस्ट इट डजंट इवन मैटर क्योंकि अब यूनिवर्सिटी आई जस्ट सिक्योर्ड माय पोजीशन और यूनिवर्सिटी में आकर इट्स सो मच इजियर अगर मैंने ए लेवल्स किया हुआ है. Trust me, the concepts I have, my जो FSC वाले दोस्त हैं, like तुम्हें ये कैसे आता है? हमने ये पढ़ा नहीं है. फिर मतलब आपके लिए तो काफी मतलब आसान था क्योंकि NET के बाद की लाइफ, लेकिन NET से पहले काफी मुश्किल था और आपने क्योंकि कोविड भी था, क्योंकि कोरोना भी साथ चल रहा था और देन देयर वाज सो मच अनसर्टेनिटी और फिर A levels के एग्जाम्स का भी काफी रिजल्ट भी आए थे काफी. देयर वाज लाइक अ chaos के मतलब काफी स्टूडेंट्स काफी खुश नहीं थे रिजल्ट से एंड ऑल दैट. तो फिर उस टाइम में तो A levels का थोड़ा सा आपका स्ट्रेस के रिजल्ट को लेकर और फिर आपकी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को, फिर उसके साथ में आपने एक तो FSC का पूरी 2 साल की बुक्स को प्रिपेयर करना, मतलब दैट्स अ लॉट. तो वो चीज आपने कैसे हैंडल की? आई एम नॉट गोना लाई, मैंने बहुत गंदी हैंडल की थी. आई वुड नेवर रिकमेंड कि मेरी तरह हैंडल करें क्योंकि मैं बहुत फिजिकली अनवेल भी हो गई थी और आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ हेयर. मैं बहुत टेंशन लेना शुरू हो गई थी. बेसिक टेंशन ये होती है कि शिट गैप ईयर ना लगे, गैप ईयर ना लगे. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो व्हाई, इट्स नॉट इवन दैट बिग ऑफ अ थिंग. अगर आपको गैप ईयर लग भी जाता है, सही है. आपको मतलब मेरी अपनी क्लास में देयर लाइक कोई 6 स्टूडेंट्स जो गैप ईयर लेकर आए हुए हैं, सही है. तो that shouldn't matter. ये this should be for everyone. That shouldn't matter. मैंने बहुत स्ट्रेस लिया, मैंने बहुत स्ट्रेस की वजह से फिजिकली अपने आप को बहुत हर्ट किया. इस तरह लाइक मुझे कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग शुरू हो गई थी क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस लेना शुरू हो गई थी इस चीज के ऊपर, NET के ऊपर स्पेशली. लेकिन मैं यही कहूंगी कि इसको इतना सीरियस मत लो. मतलब लो, टेक इट टू द पॉइंट कि आपको आता हो सब कुछ. मैं यही कहूंगी कि मुझे ज्यादा टेंशन ये थी कि मैंने सिलेबस कवर कैसे करना है क्योंकि लेकिन कोरोना की वजह से नॉट गोना लाई, कोरोना ने हमें टाइम दे दिया. अगर मुझे कोरोना टाइम ना देता तो आई प्रोबेबली बी इवन वर्स क्योंकि फिर मुझे लाइक महीना 1.5 महीना मिलना था. लेकिन इस तरह मुझे कोई 2-3 महीने इजीली मिल गए टू प्रिपेयर फॉर द FSC एंड NET उस सारा कुछ करने के लिए. तो कोरोना डिड हेल्प, आई एम गोना से दिस.
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन सेल्फ, अपनी मेहनत होती है जो चलती है, बहुत ज्यादा आपकी अपनी मेहनत होती है। ओके लाइक मैंने अब एकेडमी भी ली थी, मैंने स्टेप्स की एकेडमी ऑनलाइन ज्वाइन की थी क्योंकि सबने लाइक कहा था कि एकेडमी कर लो, उसके बगैर नहीं होगा, डोंट डू इट, जस्ट हर चीज यूट्यूब पे पड़ी है, डो सही है, आप बिल्कुल पैसे वेस्ट ना करना एकेडमी को, इट्स जस्ट, और फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एन ए लेवल का बच्चा, एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, लेकिन मुल्तान के अंदर इट्स सो अनोइंग गोइंग टू दीज अकेडमी, सही है, वहां पे अब देखो ए लेवल तो मुझे आदत थी, मैं ऑलमोस्ट अपनी हर दूसरी क्लास डिच करती थी, ठीक है, आई हार्डली वेंट टू माई क्लासेस इन A2, सही है, लेकिन अब अकेडमीज में दे एक्सपेक्ट यू कि आप 5-5 क्लासें इकट्ठी लो, एंड यू आर जस्ट सो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैंने इंग्लिश नहीं लेनी, तो टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल अकेडमीज ना लेना, डू योर ओन स्टफ, सही है, आप सेल्फ स्टडी करो, बहुत आगे जाओगे सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब पे हर चीज पड़ी है। यार दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं भी आती लाइक यूट्यूब पे मतलब फ्री का सब कुछ मिल रहा है, तो आप इतने एग्जैक्टली इतना स्पेंड हाँ करने का कोई तुक नहीं बनती, इट्स बेटर कि नॉट टू एग्जैक्टली स्पेंड सो मच लाइक हाँ या। तो अच्छा आपने ये मेंशन किया था कि आप मुल्तान से हैं, तो प्रोबेबली आप नस्ट में एज अ हॉस्टलाइट होंगी राइट? यप यप। तो हॉस्टल की लाइफ का थोड़ा सा बताएं, उसके कोई पर्क्स वगैरह। अच्छा, I'm not gonna lie, I पहले मुझे हॉस्टल्स का हमेशा से बहुत शौक था कि लाइक घर से निकलो, इंडिपेंडेंट लाइफ, ये वो, एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, लाइक मैं मुझे बहुत मजा आया। और आई डोंट नो ये हम बाकी हॉस्टल्स में यूनिवर्सिटीज में है या नहीं है कि नस्ट में आप स्वैप कर सकते हो, तो हमने फ्रेंड्स बना लिए जल्दी क्योंकि हमें इनिशियली क्वारंटीन में रखा था, तो हमने फ्रेंड्स बना लिए एंड इवेंचुअली वी एंडेड अप स्वैपिंग। और अब जो मेरे वी हैव हियर लाइक 3 रूममेट्स, तो मेरे जो बाकी 2 रूममेट्स हैं वो मेरे अपने देयर फ्रेंड्स, तो हमें बहुत मजा आता है, हम कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी होती है, बहुत हमारा मतलब हम एक दूसरे को लाइक आई डोंट नो हाउ, लेकिन हॉस्टल का बहुत फायदा होता है, और ये मैं कहता हूँ कि नास्ट के हॉस्टल्स इन कंपैरिजन टू एवरी अदर हॉस्टल सबसे बेस्ट है, इकोनॉमिकली और द प्लेस फॉर द मनी दे टेक, उनके हॉस्टल्स आर द बेस्ट इन माय ओपिनियन, क्योंकि लाइक हाँ ठीक है, अगर आप सफाई रखोगे बहुत अच्छी सफाई रहेगी, अगर आप साफ सुथरा रखोगे बहुत अच्छा साफ सुथरा रहेगा, सो लाइक और बाकी बहुत गंदे हॉस्टल्स की मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी हुई है, मेरी दोस्तें भी वहां हैं, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने नर्स चूज किया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो मतलब आप काफी सेटिस्फाई हैं, मतलब अगर आप एक थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करें डे स्कॉलर और हॉस्टलाइट्स की स्टडी के लिहाज से कि मतलब हम्म उनको अगर अभी क्योंकि आप लोगों के आई गेस इतने क्विजेस और मतलब असाइनमेंट्स इतनी नहीं हुई, तो अगर आप अगर लेट्स जस्ट इमेजिन कि अगर आपके अभी आप होती ना इसमें और आपके फाइनल्स चल रहे होते, तो कितना हॉस्टल बीइंग अ हॉस्टलाइट आपको बेनिफिशियल रहता लाइक प्रेपरेशन में, क्विजेस की प्रेपरेशन, फाइनल्स की, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स की। यार हाँ, दैट्स अ वेरी वैलिड थिंग टू टेक इनटू नोटिस, क्योंकि हॉस्टल्स में पढ़ाई करना इज मुश्किल, सही है, क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल से पढ़ती थी, क्योंकि एक तो आपको एक स्पेसिफिक जगह मिली हुई है, आप ट्राई करते दूसरे की प्राइवेसी इन्वेड ना करो, और लाइक कुछ बच्चे जैसे मुझे भी आदत है, मैं ऊंचा ऊंचा बोल के पढ़ती हूँ, सही है, तो लाइक ये भी मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ की नस्ट लाइब्रेरी इज अमेजिंग, लस्ट लाइब्रेरी बहुत कमाल है, तो हमने तो लाइक रूटीन बनाई हुई थी कि हम दिन में इतने घंटे लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे कॉन्स्टेंट, क्योंकि नॉट गोना लाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वेरी हार्ड, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ किड जिसके अच्छे खासे ग्रेड्स रहे हैं पीछे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वेरी हार्ड, बहुत Like, मुश्किल है। हाँ तो मतलब अब लाइब्रेरी जाके हमें प्रॉपर पढ़ना पड़ता था इज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सारे उसके लिए, लेकिन हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ते हैं, और हमने भी पढ़ा है, हम ठीक है, हमने उस वक्त प्रॉपर नहीं पढ़ा, हम शुगल शुगल में गुजारते रहे, लाइक यू सेड हमारे क्विजेस नहीं हुए थे वहां पे, और हमारे ओएचटीज नहीं हुए थे, हमारे कुछ नहीं हुए थे, लेकिन उसके अलावा आई थिंक हम पढ़ लेते अगर हम ज्यादा अपना फोकस लगाते, ये ओके अब हम वापस घर आ गए तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे थोड़े से। ओके तो अब क्योंकि आपने की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो पहले तो आपने क्विजेस क्योंकि नहीं हो रहे थे, कोई असाइनमेंट्स का इतना वो नहीं था, लाइक आप लोगों का था कि अच्छा एक मिड्स होंगे एंड देन देयर वर गोना बी फाइनल्स, बट देन लॉकडाउन आ गया, फिर उसमें वो मिड्स भी रह गए, और फिर क्या गया कि स्ट्रेट अवे ईएससीज हैं और क्विजेस हैं Oh और no, they took so many quizzes. इतने quizzes लिए हैं लाइक और हम पहला सेक्शन थे, पहली क्लास थे जिसका पहला अनअनाउंस्ड सरप्राइज क्विज हुआ था,
और वो लकीली इनफ मैं सो के क्लास लेती थी, लकीली इनफ अल्लाह की तरफ से मैंने वो एक्चुअली जाग के क्लास ले रही थी वो वाली। और सर ने कहा बेटा 10 मिनट है, 10 मिनट बाद क्विज क्लोज हो जाएगा। एंड हम सारी शक्लें देख रहे हैं कि 5 मिनट तो हमने पैनिक में गुजार दिया, हमारे साथ हुआ क्या है। तो क्विजेस बहुत गंदे हैं, दे गिव सो मेनी असाइनमेंट्स, इतने क्विजेस होते हैं, इतनी असाइनमेंट्स होती हैं। और अब हमें हमारा प्रोजेक्ट भी मिल गया एंड सेमेस्टर वाला, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम पहले क्या चीज करें, क्योंकि लैब्स भी साथ है हमारी, फिर लैब्स की भी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। तो बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है लाइक। नहीं, लेकिन अब देखिए ना, जैसे आप लोग के मिड्स नहीं हुए तो अब एकदम से स्ट्रेट अवे आपके फाइनल्स आ जाए और आप लोग फ्रेशमैन है तो आप लोग को इतना आइडिया भी नहीं है, तो लाइक क्विजेस और असाइनमेंट आप लोग की एक तरह से बेनिफिशियल हैं या नहीं, इस लिहाज से आप क्या कहेंगी? जीरो, जीरो, बिल्कुल जीरो। कोई बेनिफिशियल नहीं है। हमारी पूरी क्लास के सेम नंबर आते हैं एंड यू नो व्हाई। लाइक हैंड्स डाउन कोई फायदा नहीं हो रहा हमें इन क्विजेस का, हमें पता भी नहीं है हम क्विज में क्या करते हैं, बस ए है चलो ए लगा दो। तो बस लिटरली। ओके ओके कूल। तो अभी फाइनल से भी कैसी एक्सपेक्टेशंस होंगे, मतलब अब जो हालात नजर आ रहे हैं कि इतनी कूल इतना हम लिटरली दुआएं मांग रहे हैं कि डीएल मोड पे हो जाए, फेस टू फेस ना हो, हम बस दुआएं मांग रहे हैं किसी तरह हमारे वो एफटीएफ से डीएल हो जाए, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता, हम पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं पूरे सेमेस्टर बस। अब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फर्दर। I got it. Okay. So okay, मुझे फिर अच्छा ये बताएं, आप like आपने पोइट्री की एंड यू जस्ट मेंशन कि आपका एसडीएम में यू गॉट लाइक यू वर द विनर, तो उसके अलावा मतलब आप कोई आप आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में आके कोई पार्टिसिपेट किया नस्ट में, इसके अलावा और कोई क्लब सोसाइटी? अब वो रिसेंटली नस्ट डिबेटिंग सोसाइटी की पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुई थी, उसमें मैंने किया था। we didn't win, we made it to the semi-finals, लेकिन फिर we didn't win, लेकिन like हमारा पहला टाइम था, मेरे दोस्त थे, मेरे और two of my friends, and it was amazing to be honest, बहुत मजा आया हम लोगों को parliamentary debates करके, and we're probably going to continue it too, क्योंकि it was really really fun। उसके अलावा मैंने सोसाइटीज ज्वाइन की हुई हैं, लाइक मैंने एसीएम ज्वाइन की हुई है, IEEE ज्वाइन की हुई है, आई हैव जॉइंड द नस्ट ट्रकिंग क्लब, मैंने ड्रामेटिक्स क्लब ज्वाइन किया हुआ है, और मैंने फाइन आर्ट्स वाली ज्वाइन की हुई है। सही। तो हाँ अभी तक कोई स्पेसिफिकली नहीं हुए उनके कुछ, लेकिन जैसे वर्कशॉप्स वगैरह होती रहती हैं। या अब लाइक आपने मेंशन किया लाइक यू आर इन एसीएम राइट, तो एसीएम के तो बहुत इवेंट्स आ रहे होते हैं, लाइक अभी भी इवन ऑनलाइन का यस बहुत काम चल रहा होता है, तो इवन अब अभी तो चले एकेडमिक्स इतनी नहीं है तो बट अगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि अगर एकेडमिक्स होती और आपने जितनी सोसाइटीज गिनवा दी हैं उस लिहाज से फिर आप अपनी मतलब कैसे सारा कुछ मैनेज करती, लाइक आप लाइक एक दो लोग यूजुअली फ्रेशमैन एक या दो में जाते हैं एंड यू आर लाइक इन नंबर ऑफ सोसाइटीज, तो वो कैसे मैनेज टू बी ऑनेस्ट मैंने ये बाद में रियलाइज किया। हाँ हाँ मैंने ये बाद में आकर रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन द थिंग इज इट्स ऑनलाइन, इसलिए फिर मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि अभी कोई फिजिकली हो भी नहीं रहा कि फिजिकली आई हैव टू गो टू मीटिंग्स या फर्स्ट या फिर इस तरह, तो फिर आई थॉट कि माइट एज वेल, क्योंकि अब हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा काम इस वक्त होता है कि शेयर कर दो चीजों को, आई एम अ लॉट ऑफ मार्केटिंग टीम, तो ज्यादा से ज्यादा यही काम होता है कि शेयर कर दो चीजों को, या सोशल मीडिया पे लगा लो, या फिर अपने दोस्तों को बुला लो, वहां देखते हैं, इवेंचुअली एक या दो ही रह जाती हैं। सही। तो आपने नेस्ट के अलावा कहाँ कहाँ अप्लाई किया था? यार मेरा दिल तो कहीं का नहीं था, क्योंकि आई वांटेड कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो आई वांट टू बी एट द बेस्ट, तो मैंने किया तो, लेकिन मैंने हमारे जोरी हर जगह करवाया था कि हर जगह कर दो, तो लाइक मैंने जीके किया था, मैंने आईएसटी किया था, मैंने फास्ट भी किया था, और मैं नस्ट किया था। हाँ हर जगह तो नहीं हुई, लेकिन ये मैंने किया था। यूईटी मैंने बिल्कुल नहीं किया था, बिकॉज आई डोंट लाइक यूईटी एट ऑल। Okay. Even no offense to UAT के students, my dad is a UAT alumni himself. Maybe that's one of the reason मैंने UAT नहीं किया था, कि just out of contempt कि नहीं मेरे अब्बू ने एक तो electrical engineering करवा रहा है, ऊपर से UAT no. अपनी कुछ Maybe करना it was just fine. हाँ you have to add like अपना एक पॉइंट होना चाहिए क्या एग्जैक्टली लेकिन वही आईएसटी और फास्ट में तो कोई टेस्ट, और मैंने प्रयास भी किया था, बट आई डिडंट गिव द टेस्ट। आईएसटी और फास्ट के अंदर तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं था समझ लो, क्योंकि इट वाज सो इजी। फास्ट का तो कुछ भी नहीं था, फास्ट तो ए लेवल स्टूडेंट को लिटरली इनवाइट कर रही थी कि आओ जाओ। मेरा
फास्ट में आई थिंक 98% बना था, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट देयर पॉलिसी वो इतना ज्यादा किसका बनता है पेपर दिए बगैर आई डोंट नो। तो फर्स्ट में मेरा हो गया था। और आईएसटी में भी मेरा, लेकिन आईएसटी का थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आईएसटी वाले प्रेफर्ड एफएससी के स्टूडेंट्स, मेरा आईएसटी में लाइक बहुत एंड में आखिरी उसमें जाके हुआ था, क्योंकि माय मेरिट अकॉर्डिंग टू आवर ब्यूटीफुल पाकिस्तानी सिस्टम एंड आईबीसीसी, मेरा मेरिट 89 पॉइंट समथिंग बनता था मैट्रिक में और ए लेवल्स में भी। तो उसकी वजह से मेरा आईएसटी में हो गया था, लेकिन बहुत एंड में जाके हुआ था। जीकी का मैंने दिया था टेस्ट, जीकी का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया था। आई गॉट 56 मेरिट पोजीशन उसमें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट द टेस्ट वाज रियली इजी। तो जीकी में मेरा हो गया था। और प्यास का, लाइक आई टोल्ड, प्यास का मैंने टेस्ट नहीं दिया। और नस्ट का मैंने टेस्ट दिया फर्स्ट टाइम राउंड, आई लिटरली फेल्ड। ठीक है, मैं सिंपल सी बात है, मेरे 119 आए थे एनईटी 1 के अंदर। मैं आई वाज सो डेवास्टेटेड कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। नस्ट का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, अच्छे आ गए मेरे एनजी 2 के अंदर। तो फिर आई थॉट के इट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल, जीकी इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव और जरा दूर भी करके है, तो आई थॉट नस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके कूल। तो आपकी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस क्या थी और नेक्स्ट में आके आपको क्या लाइक रियलिटी क्या थी? ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन वैलिड रहेगा मेरे लिए अभी, क्योंकि आई स्पेंड मुश्किल से 2 महीने इन नस्ट और फिर हमें वापस भेज दिया गया। तो आई डोंट थिंक मैंने इतना भी एक्सपोजर या वगैरह गेन किया है टू टेल के प्रैक्टिकली नस्ट मुझे क्या ऑफर एक्चुअली में कर रहा है। ओके तो वो तो प्रॉब्लली मुझे आगे जाके ही पता चलेगा ज्यादा। ओके, सो ओरिएंटेशन आपकी है? यस यस, आई डिड अटेंड द ओरिएंटेशन। हमारी कोई ओरिएंटेशन पर से तो नहीं हुई, ये आपने भी बहुत बड़ी दुखती राग पे हाथ रखा है क्योंकि हमारी कोई ओरिएंटेशन तो नहीं हुई। लाइक यूजुअली ओरिएंटेशन वीक टाइप होता है एंड हमारे सीनियर जो दिखा रहे थे, ओ ये देखो पिछले साल की ओरिएंटेशन की वीडियोस, ये हमारा ये कॉन्सर्ट हुआ था, ये हुआ था। एंड और हमारी कुछ भी नहीं थी, हमारा लिटरली हमें बिठाया उन्होंने हमें कोई 3 घंटे जो उनका सारा इंट्रोडक्शन वगैरह थी वो करवाया कि क्या है नस्ट में, एवरीथिंग दैट्स देयर, सारा कुछ वो करवाया। मतलब ठीक है, इट वाज ओके। फिर दे टुक अस टू सीट्स, वहां पे ऑडिटोरियम में हमारी आइस ब्रेकिंग हुई। तो लाइक वहां जाके थोड़ा बहुत शुगर लगा हमारा। फिर वहां जाके हमने एंजॉय किया थोड़ा सा, सीनियर्स ने हमें एंजॉय करवाया, वी प्लेड शरेड्स एंड स्टफ। इवन आई थिंक ऑन यूट्यूबर भी कोई बंदा था, उसने व्लॉग लगाई थी हमारी ओरिएंटेशन के ऊपर। आई मीन द व्लॉग। That's cool. तो लाइक इट वाज गुड। 2 दिन की थी हमारी, लेकिन हमारे सीनियर्स दे वर नाइस, उन्होंने हमें अच्छा करवाया, शुगर लगवा दिया उन्होंने या एटलीस्ट हमें। सिचुएशन के लिहाज से कितने हाँ लाइक हाँ, कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10? डोंट डू दिस टू मी। ओके लेट्स नहीं लाइक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब जिस तरह कोरोना था, क्योंकि हमारे लास्ट Yeah, according to the situation it was a 10. According to the situation it was a 10, क्योंकि आई थिंक सिर्फ सिक्स या ज्यादा से ज्यादा एसएमएम था जिसने कुछ करवाया, और आई डोंट थिंक किसी ने कुछ प्रॉपर करवाया। जिस तरह हमने 2 दिन एंजॉय कर लिया, हमने बाहर बैठ के हमने ट्रूथ एंड डेयर भी खेला, हमने पास द पार्सल भी खेला अच्छे खासे लोगों ने, सीनियर्स ने हमें एंजॉय भी करवा दिया। तो मतलब आई थिंक सिक्स वाज द ओनली वन जिसने प्रॉपर तरीके से करवाई हमारी। मतलब वी एंजॉयड, तो आई विल गिव इट अ 10 फॉर द सिचुएशन दैट वाज गोइंग ऑन। Okay. Any advice would you like to give to our viewers? Yeah, just don't stress too much. इंशाल्लाह हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मेक नेक्स्ट ईयर गोल, स्पेशली अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग के लिए तो अमेजिंग है, सही है। लाइक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द रिसर्च लैब्स ओवर हियर एंड आई एम एमिंग फॉर देम टू। सही है कि अल्लाह करे कहीं ना कहीं बंदा घुस जाए, लेकिन डू आई वुड रिकमेंड नेस्ट अ लॉट। बहुत लोग आपको कहेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं मिलती बाद में। यार किसी इंजीनियर को नौकरी नहीं मिलती, मैं अभी बता रही हूँ। अगर ये डर है ना तो इंजीनियरिंग छोड़ दो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर यू आर गोइंग टू स्टे इन पाकिस्तान तो आई थिंक एटलीस्ट नास्ट वुड बी योर बेस्ट ऑप्शन। तो मेहनत करो, एनईटी के ऊपर बहुत जोर दो। एनईटी विल बी योर मेक और ब्रेक पॉइंट। मेरे पर्सनली एनईटी में 149 थे, और लाइक अब कंसिडरिंग कोरोना वाले उस सिचुएशन में मेरी मेरिट पोजीशन बनी 238। सही है। तो बहुत लोग होते हैं कि भाई हमने ओए लेवल्स करके हम नहीं कर सकते ये वो। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आई एम एन ओए लेवल स्टूडेंट और मैंने अगर 238 मेरिट पोजीशन लिया तो यू कैन डू इट टू।
तो इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकोगे, सही है। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, आप मेहनत करो। आई विल से वन थिंग, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। बहुत ऐसी चीजें हैं जो एनईटी छेड़ती भी नहीं है एफएससी में, जो डोंट फोकस ऑन दैम। अपने किसी भी इमीडिएट सीनियर से पूछ लो जिसने एनईटी में अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिसने एनईटी हु आर एक्चुअली इन एच 12 कैंपस इन नास्ट, कि अब क्या आता है इसके अंदर, और मतलब कॉनिक सेक्शन वगैरह कुछ चीजें हैं जो बहुत बहुत मेन चीजें हैं। डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्टफ दैट वोंट इवन कम इवेंचुअली, या जिसका एक क्वेश्चन आएगा। डू दैट जिसके 10 10 20 questions आ जाते हैं, और trust me, there are topics like those. So yeah, focus on that. Have the confidence to go and give an impromptu speech. You should have the confidence to go on the. अब मैं आपको मजे की बात बताऊँ, हमारी orientation हो रही थी and they were like, I don't know, 300 kids, नहीं 300 ज्यादा, हाँ इतने ही बच्चे होंगे, सीट के सारे बच्चे थे। Bro, the director was on stage. I don't know what director he was. और मुझे actually गुस्सा इस बात का कि लड़कियों का curfew time is 10 o'clock and लड़कों का curfew time is 11 o'clock, right? So I actually stood up in the entire orientation question answers के दौरान and I asked the guy कि why is this? I literally asked the guy कि हमारी 10 बजे क्यों है, and लड़कों की ग्राम and the entire like जो पूरा वो था, they were hooting and stuff, लेकिन I was genuinely curious कि यार ये क्यों है, this is wrong, simple सी बात है। आगे से उसने कहा कि like we care for our daughter, the parents वो trust us and care for their daughters, to which I replied कि does that mean they don't care for their sons? तो फिर वो क्या कहता है इसके आगे So you're तो that like person. yeah, I'm that person. So कुछ like you should know when to stand up for yourself and to have that confidence. Okay, Sania, thank you so much for coming on our show. It was really nice No talking to issue. you. And Thank I you so hope much for आपकी having me. and I hope कि हमारे viewers को बहुत मजा आया होगा and they had really good points to take from you. और आज की episode यहीं पे खत्म होती है. Guys, do like and subscribe. And yeah, that's all for today. Okay, love is everyone.